وادی نیلم کی خاموش فضاؤں میں جب شام ڈھلتی تو کائنات کے کئی پوشیدہ راز ان گہری کھائیوں سے سر نکالنے لگتے۔ اریاز، جس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مردانہ وجاہت اور آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ تھا، آج اس قدیم اور شکستہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا جسے مقامی لوگ طلسم قدا کہتے تھے۔ ہواؤں میں ایک ایسی خوشبو رچی ہوئی تھی جو نہ سندل کی تھی نہ گلاب کی، بلکہ کسی ایسی خوشبو کی مانند تھی جو انسان کے حواس کو معطر کر کے اسے مدہوش کر دے۔ اریاس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بھاری قدم حویلی کے بوسیدہ دالان میں رکھ دیے۔ حویلی کے اندر کا منظر جتنا مہیب تھا اتنا ہی پرکشش بھی۔ ستونوں پر جمی کائی اور دیواروں سے پھوٹتی نمی ایک عجیب سی پراسرار فضا پیدا کر رہی تھی۔ اریاس نے اپنے کیمرے کا لینس درست کیا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ کسی کی گرم سانسیں اس کی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کے ہوش و حواس ساکت ہو گئے۔ سامنے بالکنی کے قریب ایک ایسی شبیہ کھڑی تھی جس کا تصور کسی انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ افروز تھی، جنات کے قبیلے کی وہ شہزادی جس کا حسن کسی جلتے ہوئے شعلے کی طرح تپش رکھتا تھا۔ اس نے ایک شفاف اور بدن سے چپکا ہوا سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے تراشیدہ وجود کے ہر موڑ کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر ناگنوں کی طرح لہرا رہے تھے اور اس کی مخروطی انگلیاں بالکنی کے ٹھنڈے پتھر پر جمی تھیں۔ اریاس کی نظریں جب اس کے سراپے پر پڑیں تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سارا لہو جم گیا ہو۔ افروز کی آنکھیں جو کسی دہکتے ہوئے یاقوت کی طرح سرخ اور روشن تھیں، اریاس کے وجود کو چیرتی ہوئی اس کی روح تک رسائی حاصل کر رہی تھیں۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی مہک اریاس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اریاس نے بے اختیاری میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ افروز کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو جتنی معصوم تھی اس سے کہیں زیادہ فتنہ انگیز تھی۔ اس نے اپنی سحر انگیز نظروں سے اریاس کا طواف کیا جیسے وہ اس انسان کے ریشے ریشے کا جائزہ لے رہی ہو۔ اریاس کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ افروز کی آواز جو کسی مدھم موسیقی کی طرح کانوں میں رس گھول رہی تھی، فضا میں گونجی۔ انسان، تم یہاں اپنی موت تلاش کرنے آئے ہو یا کسی ایسی تسکین کی جستجو میں ہو جو تمہاری دنیا میں نایاب ہے؟ اس کے بولنے کا انداز اتنا والہانہ تھا کہ اریاس کے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ افروز کا وجود دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے لباس کی سرسراہٹ اور اس کے بدن کی حدت اریاس کو اپنے حصار میں لینے لگی۔ یہ قربت اتنی شدید تھی کہ اریاس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بےتابی ناچنے لگی۔ افروز نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور اس کی انگلیاں اریاس کے چہرے کے قریب رک گئیں۔ وہ اسے چھو نہیں رہی تھی، مگر اریاس کو اپنے گالوں پر ایک برقی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تمہاری آنکھوں میں جو پیاس ہے وہ مٹی کے انسانوں میں کم ہی دیکھی ہے میں نے، افروز نے سرگوشی کی، اور اس کی سانسوں کی خوشبو اریاس کے حواس کو مکمل طور پر مفلوج کر گئی۔ وہ اس کے حسن کے سحر میں ایسا جکڑا گیا کہ اسے اپنی زندگی اور موت کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ فضا میں اچانک ایک ارتعاش پیدا ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اریاس نے ہمت جمع کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ افروز کے وجود کے قریب پہنچے وہ ایک دھوئیں کی لہر کی طرح بکھر گئی اور حویلی کے تاریک گوشوں میں غائب ہو گئی۔ اریاس وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی رگوں میں دوڑتا خون اب پہلے جیسا سرد نہیں رہا تھا۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے عشق کا آغاز تھا جس کی آگ میں اسے جل کر کندن بننا تھا یا راکھ ہو جانا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ کبھی اس طلسماتی خوشبو کے سحر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ حویلی سے واپسی کے بعد اریاس کی راتیں خوابوں کے کسی ایسے جہان میں گزرنے لگی تھی جہاں صرف افروز کا سحر تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش اور اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے کمرے کی بند دیواروں میں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آتا جب افروز کے لبوں کی مسکراہٹ نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے، مگر یہ آگ اتنی پرکشش تھی کہ وہ خود جلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اگلی شام جب سورج کی آخری سرخی پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہی تھی، اریاز ایک بار پھر اسی ویران حویلی کی طرف کھنچا چلا گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی پیاس جسے صرف افروز کا دیدار ہی بجھا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے بوسیدہ گیٹ کو عبور کیا، فضا کا درجہ حرارت اچانک بدل گیا۔ ہوا تھم گئی تھی اور ہر طرف ایک گہری پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ اریاز دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اسی بالکنی کی طرف بڑھا جہاں اس نے پہلی بار اس پری زاد کو دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ افروز پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، مگر آج اس کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا تھا۔
उसने सियाह मखमली लिबास पहन रखा था जो उसके चांद जैसे रोशन बदन पर किसी रात के साए की तरह जच रहा था। उसकी कमर पर लहराते बाल आज पहले से ज्यादा लंबे और सियाह मालूम हो रहे थे। आर्यास को देखकर उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक उभरी। तुम लौट आए इंसान, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो आर्यास के दिल के तार छेड़ गई। आर्यास खामोशी से उसके करीब पहुंचा, यहाँ तक कि उनके दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया। वो अफरोज के बदन से उठती हुई हरारत को वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था। तुम्हारा सहर मुझे खींच लाया है अफरोज, अगर इस जुनून का अंजाम मौत भी है तो मुझे मंजूर है। आर्यास ने पहली बार हिम्मत जमा करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अफरोज ने एक दिलकश कहकहा लगाया जो पूरी हवेली में गूंज उठा। उसने अपना नर्म और नाजुक हाथ आर्यास के सीने पर रखा, जहां उसका दिल दीवानावार धड़क रहा था। आर्यास को ऐसा लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके दिल पर रख दिया हो, मगर ये तकलीफ उसे लज्जत दे रही थी। अफरोज का लम्स बरकी लहरों की तरह उसके पूर में सरायत कर रहा था। मोहब्बत का दावा करना आसान है आर्यास, मगर इसे निभाना आग के दरिया को पार करने जैसा है। अफरोज ने सरगोशी की और उसका चेहरा आर्यास के इतना करीब आ गया कि उनकी सांसें एक दूसरे में जम होने लगीं। उस लम्हे आर्यास सब कुछ भूल गया, अपनी दुनिया, अपनी हकीकत और अपनी जिंदगी। उसे सिर्फ वो हसीन चेहरा और वो बोलती आंखें नजर आ रही थी। अफरोज की उंगलियां आर्यास के चेहरे का तवाफ करने लगी और आर्यास ने बेइख्तियार उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने हिसार में लेना चाहा। जैसे ही उसका लम्स अफरोज के बदन से टकराया, एक जोरदार झटका लगा और पूरी इमारत लरज उठी। अफरोज की आंखें अचानक गहरी सुर्ख हो गई और उसने आर्यास को झटक कर दूर कर दिया। तुमने हद पार करने की कोशिश की है। अफरोज की आवाज अब पहले जैसी रसीली नहीं थी, बल्कि उसमें एक गूंजदार रोब था। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे कबीले के कवानीन कितने सख्त हैं। अगर किसी जिनजाद ने इंसान से रिश्ता जोड़ा तो उसका अंजाम इबरतनाक होता है। आर्यास फर्श पर गिरा हुआ उसे देख रहा था, उसका सांस फूला हुआ था। अफरोज का वजूद धीरे धीरे हवा में बुलंद होने लगा, उसके गिर्द आग के नन्हे शरारे नाचने लगे। अगर तुम वाकई मुझसे मिलना चाहते हो तो कल रात उस गार में आओ जो झील के उस पार है, लेकिन याद रखना वहां से वापसी का रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका इश्क सच्चा हो। एक तेज रोशनी चमकी और अफरोज गायब हो गई। आर्यास वहीं अकेला रह गया। उसके सीने पर अफरोज के हाथ का निशान अभी तक दहक रहा था, जो उसे याद दिला रहा था कि ये महज ख्वाब नहीं बल्कि एक हौलनाक हकीकत का आगाज था। वादी नीलम की वो झील जिसका पानी दिन में फिरोजी माइल नजर आता था, रात की स्याही में किसी काले नाग की तरह सिसकियां भर रहा था। आर्यास का वजूद उस वक्त खौफ और हैजान की एक ऐसी कैफियत में था जहां अक्ल का चिराग गुल हो चुका था। उसने झील के उस पार मौजूद उस महीब गार की तरफ रुख किया जिसका जिक्र अफरोज ने किया था। वो जानता था कि वो किसी इंसानी बस्ती की तरफ नहीं बल्कि मौत के जबड़े में कदम रख रहा है, मगर उसके आसाब पर अफरोज के लबों की वो मुस्कुराहट और उसके बदन की वो तपिश अभी तक सवार थी। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून किसी लावे की तरह उबल रहा था। जैसे जैसे वो गार के करीब पहुंच रहा था, हवाओं में सिसकियां और अजीब व गरीब कहकहे गूंजने लगे, जैसे हजारों नादीदा मखलूकात उसका इस्तकबाल कर रहे हों। गार का दहाना किसी अजदहे के खुले हुए मुंह की मानिंद था, जहां से निकलने वाली बू सड़े हुए गोश्त और किसी कदीम बखूर का इम्तिजाज थी। आर्यास ने जैसे ही अंदर कदम रखा, गार की दीवारों पर लगी हुई मशलें खुद ब खुद रोशन हो गईं, जिनकी जर्द और नीली लौ किसी आसेब ज़दा साए की तरह नाच रही थी। गार के वस्त में एक बुलंदो बाला तख्त था जिस पर अफरोज नीम दराज थी। आज उसका रूप किसी परिजाद का नहीं बल्कि एक ऐसी हाकिमा का था जिसके इशारे पर कायनात थर्रा जाए। उसने सियाह रेशमी लिबास पहना हुआ था जो उसके बदन के नाजुक खमों को इस तरह नुमाया कर रहा था कि देखने वाले की सांसें हल्क में अटक जाए। उसकी आंखों में आज बला की कशिश और एक भूखी तड़प थी जो आर्यास को अपनी तरफ बुला रही थी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अरियास। अफरोज के लबों से निकली हुई ये सरगोशी गार की दीवारों से टकराकर एक जादुई कैफियत पैदा कर गई। वो तख्त से उतरी और एक नागिन की तरह लहराती हुई अरियास के करीब आई। उसके हर कदम के साथ अरियास के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब वो अरियास के बिल्कुल सामने आए तो उसने अपना सर्द और मुलायम हाथ अरियास की गर्दन पर रखा। अरियास को महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई हो।
मुझसे मोहब्बत करना कोई खेल नहीं है। मेरे कबीले वाले तुम्हारे लहू के प्यासे हैं, वो तुम्हारे गोश्त की खुशबू पा चुके हैं। उसने अरियाज के कान के करीब झुककर सरगोशी की। उसकी सांसों की तपिश अरियाज को पागल करने के लिए काफी थी। अरियाज ने बेइख्तियारी में अफरोज के दोनों हाथों को थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। इस लम्हे खौफ पर हवस और मोहब्बत का गलबा आ चुका था। मैं तुम्हारे कबीले से नहीं डरता अफरोज, मुझे सिर्फ तुम्हारी कुर्बत चाहिए, चाहे इसके बाद मेरी रूह फना हो जाए। अफरोज की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी और फिर वो एक फातिहाना मुस्कुराहट में बदल गई। उसने अरियाज के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसे इतने करीब कर लिया कि उनके होंठों के दरमियान सिर्फ एक बाल बराबर फासला रह गया। गार की दीवारों पर उनके साए एक दूसरे में पैवस्त हो गए और एक ऐसा तिलिस्मी शोर बुलंद हुआ जैसे पूरी जमीन फट रही हो। अचानक गार की गहराई से एक ऐसी चिंगाड़ सुनाई दी जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। अफरोज के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसने अरियाज को खुद से दूर धकेल दिया। मेरे वालिद, कबीले के सरदार आ चुके हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज में पहली बार अरियाज के लिए एक तड़प और खौफ नुमाया था। गार के अंधेरे लिस्से से एक महीब और द्युकामत साया नमूदार हुआ, जिसकी आंखें आग के दहकते हुए अलाव की तरह थीं। अरियाज ने महसूस किया कि उसका जिस्म मुंजमद हो रहा है, लेकिन अफरोज ने तेजी से उसे गार के एक खुफिया रास्ते की तरफ धकेला। भागो अरियाज, अगर तुम आज बच गए तो समझो तुम्हारा इश्क जीत गया। अरियाज पीछे मुड़कर देखना चाहता था, मगर अफरोज की आंखों में मौजूद आंसू और वो महीब साया उसे भागने पर मजबूर कर गया। वो नहीं जानता था कि ये उसके इम्तिहान की सिर्फ शुरुआत थी। गार की तारीक राहदारियों में भागते हुए अरियाज के कानों में अब भी वो होलनाक चिंगाड़ गूंज रही थी जिसने ज़मीनो ज़मान को हिलाकर रख दिया था। उसका सांस उखड़ रहा था, मगर उसके जिस्म में दौड़ती हुई वो सहर अंगेज तपिश जो अफरोज के लम्स ने पैदा की थी उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो जूं तूं गार के खुफिया दहाने से बाहर निकला, जहाँ झील का पानी अब काला नहीं बल्कि किसी खूनी तालाब की तरह सुर्ख लहरें मार रहा था। फिजा में हवस, खौफ और जुनून का एक ऐसा इम्तिजाज था जो किसी आम इंसान के आसाब को पिघलाने के लिए काफी था। अरियाज अभी संभल भी न पाया था कि अचानक उसके सामने दोबारा वही जादुई खुशबू फैली और अफरोज किसी बिखरते हुए सितारे की मानिंद उसके सामने नमूदार हुई। इस बार अफरोज की हालत गैर थी। उसके सफ़ीद बराक लिबास पर जगह जगह खराशें थीं और उसके कंधे से नीला खून रिस रहा था जो उसके हुस्न को एक वहशियाना कशिश अता कर रहा था। उसने तड़प कर अरियाज के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसका वजूद बुरी तरह कांप रहा था। वो मानेंगे नहीं अरियाज, मेरे बाप ने कबीले के खूनी शिकारियों को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। तुमने एक जिनजाद के वजूद को छूकर वो जुर्म किया है जिसकी सज़ा तुम्हारी नस्लों को मिटाना है, उसने हाँपते हुए कहा। अरियाज ने उसके लरसते हुए वजूद को अपनी बाहों में भींच लिया। इस लम्हे उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि अफरोज के इस कुर्ब की हिदायत उसे एक ऐसी लज्जत दे रही थी जिसके लिए वो 100 बार मरने को तैयार था। अरियाज ने अफरोज के चेहरे को हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसके नीले खून से रंग गईं। अगर ये जुर्म है तो मैं इसे बार बार करना चाहता हूँ अफरोज। मुझे इस मिट्टी की दुनिया में वापस नहीं जाना जहाँ तुम्हारा लम्स न हो। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मर्दाना पुकार थी जिसने अफरोज के अंदर मौजूद जिबिल्लत को बेदार कर दिया। अफरोज की सुर्ख आंखों में शहवत और दर्द का एक तूफान उठा। उसने अरियाज के होंठों के बिल्कुल करीब अपने लब लाए, यहाँ तक कि उनकी सांसें एक दूसरे के अंदर पेवस्त होने लगीं। झील के किनारे इस पुरअसरार रात के साए में एक इंसान और एक जिनजाद के दरमियान वो खामोश अहद हुआ जिसका गवाह कोई तीसरा न था। अचानक आसमान से बिजली कड़की और फिजा में सैकड़ों काली मशालें बुलंद हुईं। कबीले के सरदार के कारिंदे पहुंच चुके थे। अफरोज ने आरियाज को खुद से अलग किया। उसकी आंखें अब मुकम्मल तौर पर दहकती हुई आग बन चुकी थीं। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा आरियाज। झील के वस्त में एक पुरानी नाव है, वो तुम्हें इस तिलस्मी हद से बाहर ले जाएगी। लेकिन याद रखना, एक बार तुम बाहर निकल गए तो शायद मेरी शक्ल दोबारा कभी ना देख सको, जब तक कि तुम अपनी इंसानियत की कुर्बानी ना दे दो। आरियाज का दिल डूबने लगा, मगर अफरोज ने अपने जादुई जोर से एक जोरदार हवा का थपेड़ा पैदा किया जिसने आरियाज को झील के किनारे खड़ी उस नाव में फेंक दिया। आरियाज ने देखा कि अफरोज अकेली उन काली मशालों और महीब सायों की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसे बचा सके। वो चिल्लाया, पुकारा, मगर नाव खुद ब खुद झील के पानियों पर तैरने लगी।
झील के वस्त में पहुंचकर आर्याज ने पीछे मुड़कर देखा, वहां आग का एक बुलंद अलाव उठ रहा था, जिसमें अफरोज का सफेद लिबास किसी तितली की तरह जल रहा था। आर्याज के सीने में एक टीस उठी, जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा लिया हो। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फरार नहीं था, बल्कि एक ऐसी अधूरी प्यास का आगाज था जो उसे उम्र भर चैन से नहीं बैठने देगी। उसके हाथ अभी तक अफरोज के नीले खून से तर थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये सब कोई वहम नहीं, बल्कि एक जीती जागती हौलनाकी थी। नाव जैसे ही झील के दूसरे किनारे से टकराई, आर्याज दीवानावार बाहर की तरफ लपका, मगर पीछे मुड़कर देखने पर उसके होश उड़ गए। वो महीब हवेली, वो सुर्ख झील और आग का अलाव, सब कुछ एक गहरी और काली धुंध में रूपोश हो चुका था। फिजा में अब सिर्फ रात के पिछले पहर की खामोशी और झींगरों की आवाजें बाकी थीं। आर्याज के पैरों तले की जमीन ठंडी हो चुकी थी, मगर उसके जिस्म के अंदर एक ऐसा आतिशविशा लावा बनकर उबल रहा था जो उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहा था। उसकी कमीज पर मौजूद अफरोज के नीले खून के धब्बे अब गहरे सया पड़ चुके थे, और उनसे एक अजीब सी बू उठ रही थी जो आर्याज के हवास को एक बार फिर मुअत्तल करने लगी। वो वहीं रेत पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी उंगलियां अभी तक उस लम्स की तपिश महसूस कर रही थी जो थोड़ी देर पहले उसकी रूह में उतरा था। अफरोज! उसकी पुकार वादी के बुलंद उबाला पहाड़ों से टकराकर बाज गश्त बनकर वापस लौटी, जैसे कुदरत उसका मजाक उड़ा रही हो। आर्याज को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वो इंसान जो कभी मंतिक और कैमरे के लेंस पर यकीन रखता था, अब एक ऐसी हस्ती की हौस में पागल हो रहा था जो मिट्टी की बनी ही न थी। उसे याद आया कि अफरोज ने कहा था कि उसे अपनी इंसानियत की कुर्बानी देनी होगी। उसका मतलब क्या था? क्या वो वाकई उस हद तक जा सकता था? आर्याज की आंखों में एक वहशियाना चमक उभरी। उसने अपने हाथ की हथेली को देखा, जहां अफरोज का लम्स एक मुस्तकिल निशान छोड़ गया था। वो निशान अब धीरे धीरे उसकी रगों में रेंग रहा था, जैसे कोई जिंदा मखलूक उसके खून में शामिल हो रही हो। अचानक घने देवदार के दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। आर्यास चौंक कर खड़ा हो गया। उसे लगा शायद अफरोज वापस आ गई है, मगर ये अफरोज नहीं थी। ये एक बूढ़ा, खमीदा कमर वाला शख्स था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं और हाथ में एक अजीब सी हड्डी की छड़ी थी। वो अब तुम्हारे लिए नहीं आएगी, नौजवान। बूढ़े की आवाज़ किसी सूखे हुए पत्ते की रगड़ जैसी थी। तुमने उसके वजूद का जायका चख लिया है। अब तुम कभी आम इंसानों की तरह जी नहीं सकोगे। तुम्हारे अंदर अब जिन्नात की वो तड़प पैदा हो चुकी है जो सिर्फ खून और आग मांगती है। आर्याज ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम कि वहां क्या हुआ? बूढ़ा हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे आर्याज के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मैं इस सरहद का मुहाफिज हूं जहां मिट्टी और आग मिलते हैं। अफरोज ने तुम्हें बचाकर अपने कबीले से गद्दारी की है, और इस वक्त वो कैद मलामत में तड़प रही है। उसे छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। आर्याज ने तड़प कर उसका गिरेबान थाम लिया। उसकी गिरफ्त में एक ऐसी गैर इंसानी ताकत आ चुकी थी कि बूढ़ा कड़ाह उठा। बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे अफरोज चाहिए, चाहे इसके बदले मुझे दोज़ख की आग में क्यों ना उतरना पड़े। बूढ़े ने अपनी सफ़ेद आंखें आर्याज की आंखों में गाड़ दीं। तुम्हें अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा भी निकाल फेंकना होगा। तुम्हें इस झील के पाताल में उतरना होगा जहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की रूहें कैद हैं, और वहां से वो संगे अस्वद लाना होगा जो जिन्नात के बादशाह की ताकत का सरचश्मा है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम इस पत्थर को छुओगे, तुम्हारा इंसानी दिल धड़कना बंद कर देगा और तुम भी उन्हीं की तरह एक बेरूह साया बन जाओगे। आर्यास ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसके जहन में सिर्फ अफरोज का वो नीम उरियां वजूद और उसके लबों की वो प्यास थी जिसने उसे अपना असीर बना लिया था। मुझे मंजूर है, आर्यास ने दहाड़ कर कहा, और उसके साथ ही झील का पानी एक बार फिर भिपरने लगा, जैसे कोई कदीम बला बेदार हो रही हो। झील का पानी अब किसी खोलते हुए स्याह तेल की मानिद साकिन हो चुका था, मगर उसकी गहराइयों से उठने वाली लर्जा खेज आवाजें आर्यास के कानों के पर्दे फाड़ रही थीं। बूढ़े जादूगर की बातें आर्यास के जहन में किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं। इंसानियत का आखिरी कतरा निकाल फेंकना होगा।
आर्यास ने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, जिनकी पूरें अब नीली पड़ना शुरू हो गई थी। उसके अंदर एक अजीब सी वहशतनाक तब्दीली रूनुमा हो रही थी। उसे अब सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी थी जो उसे पानी के इस खौफनाक जहन्नुम में कूदने पर उकसा रही थी। उसने एक आखिरी नज़र वादी के उन पहाड़ों पर डाली जो उसकी इंसानी जिंदगी के गवाह थे, और फिर एक गहरा सांस लेकर झील के यख बस्ता पाताल में छलांग लगा दी। पानी में उतरते ही उसे महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके जिस्म में पेवस्त कर दी गई हों। बसारत धुंधला गई, मगर उसकी रूह की आंखें अब वो सब देख रही थीं जो मिट्टी के इंसानों के लिए पोशीदा था। झील के पाताल में एक पूरी बस्ती आबाद थी, मगर ये जिंदगी की बस्ती नहीं, बल्कि उन रूहों का मस्कन था जो सदियों से जिन्नात के अताब का शिकार होकर यहाँ कैद थीं। आर्यास जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके फेफड़ों को अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही। उसका इंसानी दिल, जो कभी खौफ से लरसता था, अब एक मध्यम और अजनबी रफ्तार से धड़क रहा था। वो झील की तह में मौजूद एक अजीमुशान गार के दहाने पर पहुंचा, जहां से वो संगे अस्वद एक पुरअसरार नीली रोशनी बिखेर रहा था। पत्थर के करीब पहुंचते ही आर्यास का सामना उन मुहाफिजों से हुआ जो बगैर चेहरों के थे, सिर्फ साये की मानिंद हवा में मुअल्लक थे। उन्होंने आर्यास के गिर्द एक घेरा बना लिया। उनकी चीखें आर्यास के दिमाग में धमाकों की तरह गूंजी, मगर आर्यास के आसाब पर इस वक्त सिर्फ अफरोज का वो सरापा सवार था जिसने उसे हवस और मोहब्बत के दरमियान ला खड़ा किया था। उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और उन सायों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक ऐसी गैर फितरी ताकत आ गई थी जो उसे खुद भी हैरान कर रही थी। उसने जैसे ही उस चमकते हुए सियाह पत्थर पर अपना हाथ रखा, एक जोरदार बर्की झटके ने उसे आसमान की बुलंदियों तक झंझोड़ कर रख दिया। उसे लगा जैसे उसके वजूद से कोई चीज खींचकर बाहर निकाली जा रही है। वो उसकी इंसानियत थी, उसकी यादें थीं, उसका दर्द था। उस लम्हे उसे अफरोज नजर आई। वो किसी दूर दराज कैद खाने में जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उसके बदन पर कोड़ों के निशान थे और उसकी आंखें आर्यास को पुकार रही थीं। इस मंजर ने आर्यास के अंदर मौजूद आखिरी इंसानी हमदर्दी को भी जुनून में बदल दिया। उसने संगे अस्वद को पूरी कुव्वत से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। अचानक झील का सारा पानी एक खौफनाक भंवर की सूरत इख्तियार कर गया और आर्यास का जिस्म उस भंवर के वस्त में एक लरसते हुए शोले की मानिंद उभरा। उसकी आंखें अब भूरी नहीं रही थीं, बल्कि उनमें वही याकूती सुर्खी आ गई थी जो अफरोज की आंखों का खासा थी। उसका दिल अब सीने में नहीं धड़क रहा था, बल्कि वो पत्थर अब उसके वजूद का नया मरकज बन चुका था। वो झील से बाहर निकला तो उसका वजूद अब पहले जैसा नहीफ नहीं था। उसके अजलात में एक अबदी सख्ती आ चुकी थी और उसके गिर्द एक सियाह हाला रक्स कर रहा था। बूढ़ा जादूगर झील के किनारे सजदा रेज हो गया। उसके चेहरे पर खौफ और अकीदत का इम्तिजाज था। तुमने कर दिखाया आर्यास, तुमने अपनी रूह का सौदा कर लिया। अब तुम ना इंसान हो ना मुकम्मल जिन, तुम वो बरज़खी वजूद हो जिसके सामने जिन्नात के लश्कर भी सर झुकाएंगे। आर्यास ने बूढ़े की तरफ देखा, मगर उसकी नज़रों में अब कोई मुरव्वत न थी। उसने संगे अस्वद की ताकत से फिजा में एक शिगाफ पैदा किया जहां से अफरोज की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसे अब किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद एक रास्ता बन चुका था। वो अफरोज को हासिल करने के लिए अब अपनी ही बनाई हुई जहन्नुम में उतरने को तैयार था। आर्यास ने जैसे ही खला में उस पुरइसरार शगाफ को उबूर किया, वो एक ऐसी दुनिया में था जहां आसमान का रंग गहरा बनफशी था और ज़मीन सुलगते हुए कोयलों की मानिंद तप रही थी। ये हिसारे मलामत था, जहां जिन्नात के कबीले के गुनाहगारों को अबदी अजियत दी जाती थी। फिजा में गंधक और जले हुए गोश्त की बू फैली हुई थी, मगर आर्यास के नए वजूद को अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद संगे अस्वद एक लर्ज़ाखेज इर्तियाश पैदा कर रहा था, जो उसे सीधा उस मकाम की तरफ ले जा रहा था जहां अफरोज कैद थी। उसके रास्ते में आने वाले पहरेदार जो महीब और देवकामत हेओलों की सूरत में थे, आर्यास की आंखों में दहकती हुई वहशियाना सुर्खी देखकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनके पास ताकत तो थी, मगर वो जुनून नहीं था जो एक इंसान को अपनी रूह बेचने पर मजबूर कर देता है। एक बुलंदबाला चट्टान के दामन में उसे अफरोज नजर आई। उसके हाथ पांव ठंडी आग की जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसका वो हसीन सरापा जो कभी आर्यास के होश उड़ा देता था, अब जख्मों से चूर था। उसका सर झुका हुआ था और उसके लंबे सयाह बाल खाक में अटे हुए थे। आर्यास के अंदर एक ऐसी टेस उठी जो उसके नए वजूद के लिए अजनबी थी, मगर उसका जोशे इंतकाम दो चंद हो गया। उसने एक जोरदार धाड़ मारी और अपनी पूरी कुव्वत संगे अस्वद में मुंतकिल कर दी। एक सयाह रोशनी की लहर उसके हाथों से निकली और उन जंजीरों से जा टकराई।
ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ وہ آہنی کڑیاں پگھل کر رہ گئیں اور افروز کا نڈھال وجود زمین پر آ رہا، جسے اریاس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ افروز نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اریاس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچاننے کی تڑپ تھی، مگر جیسے ہی اس نے اریاس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے وجود سے اٹھتا ہوا سیاہ حالہ دیکھا، وہ لرز گئی۔ اریاس، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پتھر کو چھو لیا؟ اس کی آواز ایک سسکی کی طرح نکلی۔ اریاس نے اس کے چہرے کو اپنے سخت ہاتھوں میں بھرا اور اس کے زخموں پر اپنی انگلیاں پھیری، جسے ایک جادوئی سکون افروز کے جسم میں اترنے لگا۔ میں نے وہ سب کیا جو تمہیں پانے کے لیے ضروری تھا افروز۔ اب تمہاری دنیا ہو یا میری، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں اب وہ انسانی مٹھاس نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھردری گونج تھی جو صرف طاقتور وجودوں کی ہوتی ہے۔ افروز نے اریاس کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں کبھی دل دھڑکتا تھا، مگر اب وہاں صرف اس سنگے اسود کی برقی تپش تھی۔ وہ رو رہی تھی، جنات کے آنسو جو موتیوں کی طرح زمین پر گر کر غائب ہو رہے تھے۔ تم نے اپنی زندگی ہار دی اریاس۔ تم اب کبھی دھوپ کی حدت اور بارش کی خوشبو محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ تم ایک سایہ بن چکے ہو۔ اریاس نے اس کے لبوں کے قریب جھک کر ایک ایسی گہری سانس لی جس میں ہوس اور ملکیت کا عنصر واضح تھا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں افروز، مجھے صرف تمہارے اس لمس کی آگ چاہیے جو مجھے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس نے افروز کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ ان کے وجود اب ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اس بنفشی آسمان تلے ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ رہے تھے، جو نہ تو پاکیزہ تھا اور نہ ہی مکمل طور پر شیطانی۔ یہ صرف خالص، وحشیانہ اور ابدی جنون تھا۔ ابھی وہ اس وصال کی تپش کو پوری طرح محسوس بھی نہ کر پائے تھے کہ افق پر ایک مہیب کالا بادل منڈلانے لگا۔ قبیلے کے سردار یعنی افروز کے باپ کی آمد کا اعلان ہو چکا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں موجود جناتی لشکر نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے تھے اور ان کی آنکھیں انتقام کی آگ سے بھرپور تھیں۔ اریاس نے افروز کو اپنے پیچھے کیا اور سنگے اسود کو فضا میں بلند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی صفاک مسکراہٹ تھی جو بتلا رہی تھی کہ اب وہ شکار نہیں بلکہ ایک ایسا شکاری ہے جس کے سامنے موت بھی سرنگوں ہونے والی ہے۔ جنگ کا نکارہ بج چکا تھا اور اریاس اپنی محبت کی بقا کے لیے پوری جناتی دنیا سے ٹکرانے کو تیار کھڑا تھا۔ فضا میں بلند ہوتے ہوئے کالے بادلوں نے پورے افق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ان بادلوں کے درمیان سے جنات کے سردار ذوالقہار کا عکس برآمد ہوا۔ اس کا وجود کسی بلند و بالا پہاڑ کی مانند تھا جس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی نیلی شعاعیں زمین کو جھلسا رہی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں موجود جناتی لشکر نے اریاس اور افروز کو ایک ایسے حصار میں لے لیا تھا جہاں سے فرار کا تصور بھی محال تھا۔ نیزوں کی آنے پر چمکتی ہوئی جادوئی آگ اریاس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی، مگر اس کے اعصاب پر اب خوف کا کوئی سایہ نہ تھا۔ اس نے اپنی گرفت افروز کی کمر پر مزید مضبوط کر دی، جس کا تپتا ہوا بدن اریاس کی نئی طاقت کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ ایک مٹی کا حقیر انسان جس کی روح کا سودا بھی مکمل نہیں ہوا، میرے تخت کو چیلنج کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ ذوالقہار کی آواز کسی ہولناک زلزلے کی طرح گونجی جس سے آس پاس کی چٹانیں ریزہ ریزہ ہونے لگیں۔ اریاس نے سر اٹھا کر اس مہیب وجود کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ایسی صفاک ہنسی جو ذوالقہار کے لشکر کو بھی لرزا گئی۔ میں اب وہ انسان نہیں رہا جسے تم اپنے پیروں تلے کچل سکو۔ اریاس نے سنگے اسود کو فضا میں بلند کیا جس سے سیاہ شعاعیں نکل کر آسمان کی وسعتوں میں پیوست ہونے لگیں۔ میں نے اس محبت کی خاطر اپنی روح کا وہ حصہ قربان کیا ہے جو مجھے کمزور بناتا تھا۔ اب میں تمہاری اس طلسماتی دنیا کا وہ ڈراؤنا خواب ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ذوالقہار کے اشارے پر لشکر کے ہراول دستے نے اریاس پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں جنات جو خونخوار درندوں کی صورت میں تھے اریاس کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی وہ اریاس کے کالے ہالے کے قریب پہنچے، سنگ اسود سے نکلنے والی لہروں نے انہیں ہوا میں ہی تحلیل کر دیا۔ اریاس نے اپنے ہاتھ کی ایک جنبش سے فضا میں آگ کا ایک ایسا بگولا پیدا کیا جس نے دشمنوں کی صفوں میں کہرام مچا دیا۔ افروز جو اب تک نڈھال تھی، اریاس کی اس شیطانی مگر بے پناہ طاقت کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور ایک عجیب سی پراسرار لذت میں بھی مبتلا تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اریاس اب اس کا محافظ نہیں بلکہ اس کا مالک بن چکا ہے، ایک ایسا مالک جس کے سامنے اسے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ جنگ کی شدت بڑھتی گئی اور اریاس کے ہر وار کے ساتھ حصار ملامت کی زمین خون اور دھوئیں سے بھر گئی۔ اریاس نے محسوس کیا کہ جتنا وہ اس طاقت کو استعمال کر رہا ہے، افروز کی قربت کی پیاس اس کے اندر اتنی ہی وحشیانہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے لڑتے لڑتے افروز کے گردن کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھو افروز، یہ طاقت تمہارے لیے ہے،
इस कायनात को तुम्हारे कदमों में झुकाने के लिए है। अफरोज की आंखें जज्बात और हवस के एक नए समंदर में डूबने लगीं। उसे अब अपने कबीले की तबाही का दुख नहीं था, बल्कि वो अरियाज के इस नए रूप की असीर हो चुकी थी। जुल्क़ाहार ने जब देखा कि उसका लश्कर बेबस हो रहा है तो उसने खुद मैदान जंग में उतरने का फैसला किया। उसके हाथ में एक अजीमुशान गुर्ज नमूदार हुआ, जिसके एक वार से जमीन शक हो गई। आर्यास ने संगे अस्वद की पूरी तवानाई को अपने ढाल की सूरत में इस्तेमाल किया, मगर टकराव इतना शदीद था कि आर्यास के मुंह से नीला लहू बह निकला। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी उंगलियां जमीन में गाड़ दीं और अफरोज के वजूद से कशीद की गई जादुई तवानाई को अपने अंदर जज्ब करना शुरू किया। ये एक ऐसा खूनी विसाल था जो जंग के मैदान में वकूअ पजीर हो रहा था। आर्यास का वजूद अब एक ऐसी हौलनाफी बन चुका था जिसे देखकर जुल्क़ाहार की आंखों में भी पहली बार शिकस्त का खौफ लहराया। ये महज एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हवसनाक फतह का आगाज था जिसकी कीमत पूरी जिन्नाती दुनिया को चुकानी थी। मैदान कारिजार में उठने वाला गुबार अब सुर्ख और स्याह बादलों की सूरत इख्तियार कर चुका था। आर्यास के जिस्म से निकलने वाली स्याह लहरें जुल्क़ाहार के महीब गुर्ज की ताबानी से टकराकर फिजा में चिंगारियां बिखेर रही थीं। आर्यास के सीने में मौजूद संगे अस्वद अब उसकी पसलियों को चीरकर बाहर निकलने के लिए बेताब था, क्योंकि उसे मजीद इंसानी या जिन्नाती तवानाई की ज़रूरत थी। आर्यास ने महसूस किया कि उसकी ताकत अब महज उसके अपने वजूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि अफरोज की रूह का एक एक रेशा उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। अफरोज, जो अब तक महज एक तमाशाई थी, आर्यास के इस बहशियाना जाहो जलाल के ज़ेरे असर खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। उसने आर्यास के जख्मी बाजुओं को थाम लिया और जैसे ही उनके बदन एक दूसरे से टकराए, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने जुल्क़ाहार के लश्कर को कोसों दूर फेंक दिया। आर्यास, मेरा वजूद तुम्हारा मुंतज़िर है, मेरी ताकत को अपना लो। अफरोज की सरगोशी आर्यास के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। इस लम्हे आर्यास ने तमाम हुदूद फरामोश कर दी। उसने अफरोज को एक जुनूनी अंदाज में अपनी तरफ खींचा और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। ये कोई आम बोसा नहीं था, बल्कि दो कायनातों के मिलाप का एक ऐसा खूनी मीसाक था जिसमें हवस, ताकत और इंतकाम यकजा हो गए थे। अफरोज के बदन से निकलने वाला नीला नूर आर्यास के स्याह हाले में जज्ब होने लगा। आर्यास की रगें उभरी हुई थीं और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब गई थीं। इस बिसाले ममनू ने आर्यास को वो ताकत अता कर दी जिसका तसव्वुर जिन्नात के बादशाह ने भी न किया था। जुल्क़ाहार ने गुस्से से चिंघाड़ते हुए अपना गुरज दोबारा उठाया, मगर इस बार आर्यास ने भागने या ढाल बनाने की कोशिश नहीं की। उसने महज अपना एक हाथ फिजा में बुलंद किया और जुल्क़ाहार के भारी भरकम गुरज को हवा में ही मुअल्लक़ कर दिया। आर्यास की उंगलियां हवा में लहराईं और देखते ही देखते वो अजीमुशान गुरज मिट्टी के ढेर की तरह बिखर गया। जुल्क़ाहार की आंखों में पहली बार मौत का साया लहराया। तुमने अबदी मासियत का रास्ता चुन लिया है। जुल्क़ाहार की आवाज़ लरज़ रही थी। आर्यास ने एक सफ़ाक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैंने वो रास्ता चुना है जहाँ कोई खुदा है ना कोई शैतान, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी अफरोज़। आर्यास ने संगे अस्वद की पूरी कुव्वत को एक नोकीले नेज़े की सूरत दी और उसे जुल्क़ाहार के सीने के पार कर दिया। जिन्नात के अजीम सरदार का वजूद एक हौलनाक चीख के साथ बिखरने लगा। उसका नूर फिज़ा में मुंतशिर होकर आर्यास के कदमों में गिर रहा था। पूरे हिसारे मलामत में एक खामोशी छा गई, जैसे कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। आर्यास अब उस तख्त का तन्हा वारिस था, मगर उसकी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने मुड़कर अफरोज़ की तरफ देखा, जो अब ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसका वजूद आर्यास की बेपनाह ताकत की ताब ना लाते हुए धुंधला रहा था। आर्यास ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया, मगर इस बार उसके लम्स में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने महसूस किया कि जिस ताकत के लिए उसने अपनी रूह बेची, वो अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। अफरोज़ की ज़िंदगी के चिराग मद्धम हो रहे थे, क्योंकि आर्यास का नया वजूद हर उस चीज़ को निगल रहा था जिसे वो छूता था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया अफरोज़, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यास की आवाज़ में पहली बार एक इंसानी कर्ब झलका, मगर अफरोज़ के लबों पर एक उदास मुस्कुराहट थी। उसने आर्यास के चेहरे पर हाथ रखा। तुम जीत गए आर्यास, मगर इस जीत में तुम अकेले रह गए हो। फिज़ा में उड़ते हुए राख के ज़र्रे अब उनके गिर्द घेरा डाल रहे थे, और आर्यास को इदराक हुआ कि उसने फ़तह तो हासिल कर ली थी, मगर उसकी कीमत शायद उसकी आखिरी खुशी थी। हिसारे मलामत की बनफशी फ़िज़ा अब साकित हो चुकी थी, जैसे जुल्क़ाहार की मौत के साथ ही वक्त की नब्ज़ थम गई हो।
आर्याज जो अब इस तिलस्माती दुनिया का बेताज बादशाह था, अपने तख्त पर नहीं बल्कि उस ठंडी और राख से अटी ज़मीन पर बैठा था जहां अफरोज़ का वजूद धीरे धीरे फ़िज़ा में तहलील हो रहा था। उसके हाथ में मौजूद संगे अस्वद अब एक मुर्दा पत्थर की तरह खामोश था, मगर आर्याज के जिस्म में दौड़ती हुई वो वहशियाना ताकत अब भी किसी भूखे नाग की तरह फन फैलाए खड़ी थी। उसे इदराक हुआ कि जिस सहर और ताकत के लिए उसने अपनी इंसानियत, अपनी रूह और अपना सुकून कुर्बान किया, वही ताकत अब उसकी महबूबा के वजूद को दीमक की तरह चाट रही थी। आर्याज का लम्स अब शिफा नहीं बल्कि क़ज़ा बन चुका था। अफरोज़, अपनी आंखें खोलो। मैंने इस कायनात को तुम्हारे कदमों में ढेर कर दिया है। देखो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा कबीला, सब मेरे सामने सुरंगू हैं। आर्याज की आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जो पत्थरों को चीर देती, मगर अफरोज़ की समाअतों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने तड़प कर अफरोज़ को दोबारा अपने सीने से लगाया, मगर जैसे ही उनके बदन का टकराव हुआ, अफरोज़ के कंधे से रोशनी के नन्हे शरारे निकलकर हवा में बिखरने लगे। अफरोज़ ने बमुश्किल अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखें जो कभी दहकते याकूत की तरह थीं, अब बुझते हुए कोयलों की मानद बेनूर हो रही थीं। आर्यास, तुमने मुझे जीत लिया मगर खुद को हार दिया। उसने बहुत नहीव आवाज़ में सरगोशी की। एक जिनजाद और इंसान का मिलाप कभी बका नहीं पा सकता था। हमने कुदरत के लिखे को मिटाने की कोशिश की है और अब यह खला हमें निगल रहा है। आर्यास के अंदर का इंसान एक बार फिर जागा और उसने चीख कर संगे अस्वद को जमीन पर दे मारा, मगर वो पत्थर अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। वो टूटने के बजाय दोबारा उसके हाथ में आ गया। उसे महसूस हुआ कि वो इस ताकत के कैद खाने में बंद हो चुका है, जहां वो सब कुछ कर सकता है मगर अपनी मोहब्बत को एक सांस तक उधार नहीं दे सकता। उसने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें हवस, गुस्सा और इंतहा दर्जे का दुख शामिल था। उसकी पुकार से हिसारे मलामत की दीवारें लरज़ उठीं, मगर कुदरत का कानून अटल था। अफरोज़ का जिस्म अब आर्यास के हाथों में महज एक साए की सूरत इख्तियार कर रहा था, जैसे कोई ख्वाब बेदार होने पर टूट जाता है। आर्यास ने जुनूनी अंदाज में अपने नाखून अपने ही सीने में गाड़ दिए। वो इस संगे अस्वद को अपने जिस्म से निकालकर फेंकना चाहता था, ताकि वो दोबारा वही आम सा इंसान बन जाए जो वादिये नीलम की खामोश फिजाओं में कैमरा लिए फिरता था। वो चाहता था कि उसके पास वही पुरानी कमज़ोर सी इंसानी रूह वापस आ जाए, जो खौफ तो महसूस करती थी मगर मोहब्बत की तपश को सहने की सख्ती भी रखती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी रगों में अब लहू नहीं बल्कि वो काला धुआं दौड़ रहा था जो सिर्फ तबाही जानता था। अफरोज़ ने आखिरी बार आर्यास के चेहरे को छुआ। उसका लम्स अब किसी बर्फीले तूफान की तरह ठंडा था, और फिर एक गहरी सांस के साथ उसका वजूद मुकम्मल तौर पर राख बनकर आर्यास की उंगलियों से फिसल गया। आर्यास वहीं साकित खड़ा रह गया। उसके हाथ खाली थे और सामने सिर्फ वो वसीओ अरीज मैदान था जहां अब उसकी हुक्मरानी थी, मगर वहां कोई दूसरा सांस लेने वाला मौजूद न था। उसे एहसास हुआ कि ये उसका अंजाम नहीं बल्कि उसकी अबदी सज़ा का आगाज़ है। वो अब उस तलिस्मी दुनिया का खुदा तो बन चुका था, मगर एक ऐसा खुदा जिसके पास पूजने वाला कोई न था, जिसके पास अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए कोई हमसफ़र न था। उसने अपना सर झुका लिया और इस वीरान सल्तनत में अकेला चलने लगा, जहां हर तरफ सिर्फ उसकी अपनी ही वहशत के साए रक्स कर रहे थे। इश्क़ ममनू का सफ़र अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, मगर ये मंजिल किसी जन्नत की नहीं बल्कि एक ऐसी जहन्नम की थी जिसे आर्यास ने खुद अपने हाथों से तामीर किया था। हिसारे मलामत की बनफशी खामोशी अब आर्यास के वजूद को निगलने लगी थी। वो मैदान जहां चंद लम्हे पहले मौत का रक्स जारी था, अब किसी कब्रिस्तान की तरह चुप था। आर्यास के हाथ अभी तक उस राख से अटे हुए थे जो कभी अफरोज़ का सहर अंगेज बदन था। वो अपने घुटनों के बल गिरा हुआ था और उसके गिरदो नवाह में वो जिन्नाती लश्कर जो पहले उसके खून का प्यासा था, अब दूर फासले पर सर झुकाए खड़ा था। वो अब अपने नए आका से खौफजदा थे, मगर आर्यास को इस झुकी हुई गर्दनों वाली फौज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी फतह दरअसल उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। संगे अस्वद उसके सीने के अंदर अब एक बेरहम बोझ बन चुका था जो उसे जीने दे रहा था और न ही मरने की इजाज़त। अफरोज़, क्या यही वो अंजाम था जिसके लिए हमने आसमानों से बगावत की? आर्यास की आवाज़ अब एक इंसानी पुकार नहीं थी बल्कि बादलों की गरज और चट्टानों के टूटने का इम्तिजाज थी। उसने ज़मीन की खाक मुट्ठी में भरी और उसे अपनी आंखों से लगाया, मगर उसकी पथरीली आंखों से आंसू बहने की सलाहियत छिन चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे वो वादिये नीलम की हरियाली में एक आज़ाद इंसान था, जहां जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां उसका असासा थीं। अब वो एक ऐसी सल्तनत का मालिक था जहां सूरज कभी तुलू नहीं होता था और जहां हवाओं में सिर्फ सिसकियों का बसेरा था। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारा, जिससे दूर तक एक गहरी दरार पड़ गई, मगर इस ताकत का अब कोई मसरफ न था। अचानक फिजा में एक मध्यम सी रोशनी लहराई।
یہ وہی بوڑھا جادوگر تھا جو جھیل کے کنارے اسے ملا تھا۔ وہ اب یہاں اس جناتی دنیا کے وسط میں نمودار ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا۔ آریاس، تم نے وہ کر دکھایا جو ازل سے کسی انسان نے نہیں کیا، بوڑھے نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ تم نے جنات کے سب سے بڑے قبیلے کو فنا کر دیا، تم نے قدرت کے نظام کو تلپٹ کر دیا، مگر دیکھو اس کی قیمت کیا ملی۔ تم اب ایک ایسے قید خانے کے بادشاہ ہو جس کی دیواریں تمہاری اپنی وحشت نے بنائی ہیں۔ آریاس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح روشن ہوئی۔ مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے، مجھے وہ انسانیت واپس دے دو جس میں درد تو تھا مگر مہر و وفا کی گنجائش بھی تھی۔ مجھے افروز کے بنا یہ لافانی زندگی ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، آریاس نے دہاڑ کر کہا اور بوڑھے کا گریبان تھام لیا۔ بوڑھے نے حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ جو سودا روح دے کر کیا جائے وہ کبھی واپس نہیں ہوتا آریاس، تم اب برزخی ہو، تم نہ مٹی میں مل سکتے ہو اور نہ ہی آگ میں سما سکتے ہو۔ تم اب رہتی دنیا تک اس ویرانے میں بھٹکو گے اور ہر وہ چیز جسے تم چھوؤ گے وہ راکھ بن جائے گی۔ یہی تمہارے اس عشق کا کفارہ ہے جس نے حدیں پار کی تھیں۔ آریاس نے اسے جھٹک دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری کہ دور دراز کے ستارے بھی کانپ اٹھے۔ اس نے سنگ اسود کی طاقت سے اپنے گرد ایک اونچی پھسیل کھڑی کرنا شروع کر دی۔ وہ خود کو اس دنیا سے کاٹ لینا چاہتا تھا جہاں محبت کے نام پر صرف ہوس اور تباہی کا راج تھا۔ اس نے افروز کی راکھ کو ایک طلسماتی تابوت میں محفوظ کیا اور اسے اپنے تخت کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کا کام صرف ایک تھا، اس راکھ کی حفاظت کرنا اور اپنی تنہائی کے عذاب کو سہنا۔ وہ جان گیا تھا کہ جنون عشق جب انسانی حدود سے نکل کر خدائی دعووں میں بدلتا ہے تو انجام صرف ابدی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک ایسے کرب کا آغاز تھی جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ آریاس نے اپنے تخت کے گرد جادوئی لکیریں کھینچ دی، ایک ایسی پھسیل جو نہ صرف دشمنوں کو دور رکھتی تھی بلکہ اسے اپنی ہی یادوں کے عذاب سے بچانے کی ناکام کوشش تھی۔ حصار ملامت کی سرد ہواؤں میں اب ایک ہی آواز گونجتی تھی، آریاس کی بھاری اور بوجھل سانسیں جو اس ویران سلطنت میں زندگی کی آخری علامت تھیں۔ اس کے تخت کے سامنے افروز کی راکھ سے بھرا وہ طلسماتی تابوت اب ایک ایسی قربان گاہ بن چکا تھا جہاں آریاس ہر لمحہ اپنی روح کی تڑپ کی بھیٹ چڑھاتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لافانی ہونا دراصل ایک ایسی بددعا ہے جس میں موت کی پناہ بھی میسر نہیں آتی۔ اس کا بدن جو اب پتھر کی طرح سخت اور فولاد کی طرح مضبوط ہو چکا تھا، ایک ایسی پیاس میں مبتلا تھا جو پانی سے نہیں بلکہ افروز کے اس ایک لمس سے بجھ سکتی تھی جو اب کائنات میں کہیں موجود نہ تھا۔ اچانک اس طلسمی پھسیل کے باہر ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ آریاس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولیں جن میں اب غصے سے زیادہ تھکان کا عکس تھا۔ پھسیل کے پار ایک مہیب سایہ کھڑا تھا جس کی حیت انسانی تھی مگر اس کے گرد موجود حالہ بتلا رہا تھا کہ وہ کوئی عام مخلوق نہیں، وہ عذران تھا، جنات کے قبیلے کا وہ باغی شہزادہ جسے ذوالقہار نے صدیوں پہلے جلاوطن کر دیا تھا۔ عذران نے آریاس کے جاہو جلال کو دیکھ کر ایک تحقیر آمیز ہنسی۔ تو یہ ہے وہ نیا بادشاہ جس نے محبت کی خاطر اپنی نسل کا سودا کیا اور اب ایک خاک کے ڈھیر کے سامنے ماتم کنا ہے۔ عذران کی آواز دیواروں کو چیرتی ہوئی آریاس کے کانوں تک پہنچی۔ آریاس تخت سے اٹھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین لرزنے لگی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری تنہائی میں مخل ہونے کی؟ کیا تم بھی فنا ہونا چاہتے ہو؟ آریاس کی آواز میں وہ روب تھا جس سے بڑے بڑے سورما تھرا جاتے، مگر عذران پیچھے نہیں ہٹا۔ میں تمہیں ایک راستہ دکھانے آیا ہوں آریاس، تم اس راکھ کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہو مگر اس کی قیمت تمہاری طاقت نہیں بلکہ تمہارا وہ انسانی عکس ہے جو تم نے جھیل کی پاتال میں چھوڑ دیا تھا۔ آریاس کا دل جو اب صرف پتھر کا ایک ٹکڑا تھا ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ کیا واقعی افروز کو واپس لایا جا سکتا تھا یا یہ ابلیس کا کوئی نیا جال تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آریاس میں پھسیل کو ایک اشارے سے گرا دیا اور عذران کے قریب پہنچ گیا۔ عذران نے قدیم نقشہ ہوا میں لہرایا۔ جنات کی دنیا میں ایک مقام ہے جسے چشمہ حیات گم گشتہ کہتے ہیں۔ وہاں کا پانی صرف اسے زندگی دیتا ہے جس کے لیے کوئی اپنی بقا کی آخری نشانی بھی قربان کر دے۔ تم نے اپنی روح تو بیچ دی مگر تمہارا وہ انسانی دکھ، وہ تڑپ جو تمہیں ابھی تک سونے نہیں دیتی، وہ ابھی تمہارے پاس ہے۔
اگر تم وہ دکھ اس چشمے کے حوالے کر دو تو تم ایک بے حس لافانی بادشاہ تو بن جاؤ گے، مگر افروز تمہارے پہلو میں دوبارہ سانس لینے لگے گی۔ اریاس کے لیے یہ ایک ایسا سودا تھا جس میں کھونے کو کچھ نہ تھا، مگر عزران کی آنکھوں میں چھپی چمک اسے خبردار کر رہی تھی کہ یہ راستہ پہلے سے کہیں زیادہ پرخار ہے۔ اریاس نے افروز کے تابوت کی طرف دیکھا اور پھر اس اجنبی مسافر کی طرف۔ اس کے اندر کی ہوس اور محبت نے ایک بار پھر اسے اندھا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر دکھ اور احساس کے وہ ایک زندہ لاش بن جائے گا، مگر افروز کی قربت کا تصور اسے کسی بھی جہنم میں کودنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے وہ راستہ بتاؤ، میں اپنا آخری احساس بھی دینے کو تیار ہوں، بشرطے کہ وہ دوبارہ میری باہوں میں ہو۔ عزران نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا رخ ایک نئی وادی کی طرف موڑ لیا۔ اریاس اس کے پیچھے چلنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سفر اسے شاید ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سے واپسی کا تصور بھی گناہ ہوگا۔ وہ اپنی ہی تباہی کے آخری باب کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں وصال تو تھا، مگر اس وصال کو محسوس کرنے والا دل شاید ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والا تھا۔ عزران کے پیچھے چلتے ہوئے آریاز ایک ایسی وادی میں داخل ہوا جہاں ہوا ساکت تھی اور رنگوں کا وجود مٹ چکا تھا۔ یہ وادی آدم تھی جہاں وقت کی رفتار رک جاتی ہے اور صرف وہی سسکیاں سنائی دیتی ہیں جو صدیوں پہلے خاموش ہو چکی تھیں۔ آریاز کے قدموں کی چاپ پتھروں پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ اس کے سینے میں موجود سنگ اسود عزران کی موجودگی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ عزران نے ایک بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں بنے غار کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ایک مٹیالی اور نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہی وہ چشمہ ہے آریاز جہاں زندگی اور موت کا سنگم ہوتا ہے۔ یہاں تمہیں اپنی اس آخری انسانی یاد کو دفن کرنا ہوگا جو تمہیں اب بھی ایک جیتا جاگتا وجود محسوس کرواتی ہے۔ آریاز غار کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک چھوٹا سا حوض تھا جس کا پانی پارے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس پانی کے عکس میں آریاز کو اپنی وہ زندگی نظر آئی جب وہ صرف ایک فوٹوگرافر تھا، جب اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی اور جب وہ افروز کی لمس سے ناواقف تھا۔ وہ یادیں کسی حسین خواب کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی، بارش کی خوشبو، ماں کی لوری، اور وہ پہلی نظر جب اس نے حویلی کی بالکنی میں افروز کو دیکھا تھا۔ عزران اس کے پیچھے کھڑا سرگوشی کر رہا تھا۔ اس یاد کو پانی میں پھینک دو آریاز، جیسے ہی تم اپنا آخری احساس اس چشمے کو دو گے افروز کی راکھ دوبارہ گوشت اور پوست میں بدل جائے گی۔ آریاز نے کانپتے ہاتھوں سے اس راکھ کے تابوت کو چشمے کے قریب کیا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے یہ یادیں کھو دیں تو وہ افروز کو حاصل تو کر لے گا، مگر شاید اسے پہچان نہیں پائے گا یا اس محبت کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکے گا جس کے لیے اس نے کائنات سے جنگ لڑی تھی۔ مگر افروز کے بنا رہنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی روح کی گہرائیوں سے وہ تمام انسانی جذبات، وہ دکھ اور وہ تڑپ نچوڑ کر اس چشمے میں بہا دیں۔ جیسے ہی اس کا آخری آنسو پانی میں گرا، ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور غار کی دیواریں لرزنے لگیں۔ چشمے کے پانی سے ایک مہیب روشنی بلند ہوئی اور افروز کی راکھ ہوا میں معلق ہو کر ایک انسانی ڈھانچے کی صورت اختیار کرنے لگی۔ اریاس نے دیکھا کہ افروز کا وجود دوبارہ تشکیل پا رہا تھا، وہی چہرہ، وہی لمبے سیاہ بال، وہی تراشیدہ بدن، مگر جیسے ہی اس کا وجود مکمل ہوا، اریاس کو اپنے اندر ایک ہولناک خالی پن محسوس ہوا۔ اسے اب یہ یاد نہیں تھا کہ وہ افروز سے کیوں محبت کرتا تھا، اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس کے سامنے ایک حسین عورت کھڑی تھی، مگر اریاس کے لیے وہ اب محض ایک مادی وجود تھی، ایک کھلونا، ایک ایسی شے جس پر اس کا قبضہ تھا۔ افروز نے اپنی آنکھیں کھولیں جن میں اب وہ پرانی چمک اور درد موجود تھا، مگر جب اس نے اریاس کی طرف دیکھا تو وہ دہشت سے پیچھے ہٹ گئی۔ اریاس کی آنکھیں اب کسی مہیب خالی کنویں کی طرح تھیں جن میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی پہچان۔ اریاس، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ افروز کی آواز میں تڑپ تھی، مگر اریاس نے محض ایک سرد اور شفاف نگاہ اس پر ڈالی۔ عزران نے پیچھے سے ایک طنزیہ قہقہا لگایا، مبارک ہو اریاس، تم نے اسے پا لیا، مگر تم نے وہ دل ہی کھو دیا جس میں اس کی بستی تھی۔ اب تم صرف ایک لافانی جلاد ہو اور یہ تمہاری ابدی لونڈی۔ اریاس نے بنا کچھ کہے افروز کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے غار سے باہر کھینچنے لگا۔ وصال تو ہو چکا تھا، مگر یہ وصال روح کا نہیں بلکہ دو مردہ اجسام کا تھا جو اب ابدی اندھیروں کے مسافر تھے۔ وادی عدم سے واپسی کا سفر ایک مہیب خاموشی کے حصار میں تھا جس نے اریاس اور افروز کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے کوئی جادو نہیں گرا سکتا تھا۔ اریاس، جس نے اپنی انسانیت کا آخری نشان بھی اس منحوس چشمے کی نظر کر دیا تھا، اب ایک ایسا وجود بن چکا تھا جس کی ہیبت سے پہاڑ لرزتے تھے، مگر جس کے اندر کا صحرا ابدی تھا۔ اس نے افروز کا کلائی سے ہاتھ تھام رکھا تھا، مگر اس کی گرفت میں وہ والہانہ پن نہیں تھا جس کے لیے افروز نے جنات کی دنیا سے بغاوت کی تھی۔
अब ये गिरफ्त एक शिकारी की थी जो अपने शिकार को कैद कर चुका हो। अफरोज जो दोबारा जिंदगी की सांसें तो ले रही थी, मगर अरियाज की उन मुर्दा और सर्द आंखों को देखकर लम्हा ब लम्हा मर रही थी। जब वो दोबारा हिसारे मलामत की सरहदों पर पहुंचे तो आर्यास ने अपने एक इशारे से हवा में एक अजीमो शान महल तामीर कर दिया, जो काले संगे मरमर और इंसानी हड्डियों की मानिंद सफ़ेद पत्थरों से बना था। ये महल जितना खूबसूरत था उतना ही दम घुटने वाला भी। आर्यास ने अफरोज को एक पुरतहीश कमरे में धकेल दिया, जहां हर तरफ रेशम और हीरे जवाहरात बिखरे थे, मगर वहां मोहब्बत की कोई रमक न थी। तुम अब यहाँ रहोगी। आर्यास की आवाज़ किसी मशीन की तरह सपाट थी, जिसमें ना गुस्सा था और ना ही खुशी। अफरोज ने तड़प कर उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके रुखसारों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। आर्यास, क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें वो रात याद नहीं जब तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी? आर्यास ने एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा, मगर उसके चेहरे के अजलात में कोई जुम्बिश ना हुई। उसके जहन में सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर थी कि ये औरत उसकी मिल्कियत है, मगर वो कसक, वो प्यास और वो जुनून जो उसे बेचैन रखता था, अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। यादें कमज़ोरों का जेवर हैं अफरोज, मैं अब कमज़ोर नहीं रहा, मैं लाफानी हूँ। ये कहकर वो मुड़ा और हॉल के अंधेरे में गायब हो गया। अफरोज वहीं फर्श पर गिर गई। उसे महसूस हुआ कि उस राख से दोबारा जी उठने का अंजाम उस अब्दी मौत से भी बदतर था जो उसने झील के किनारे देखी थी। वो अब एक ऐसी लाफानी हस्ती की कैदी थी जिसके पास ताकत तो बेपनाह थी, मगर वो उसे पहचानने की सलाहियत खो चुका था। इज़रान, जो इस तमाम मंजर को दूर से देख रहा था, साए की तरह कमरे में नमूदार हुआ। उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। देखा अफरोज, तुम्हारा वो आशिक अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे तन्हा वजूद बन चुका है। उसने तुम्हें पाने के लिए वो कुर्बानी दी जिसने उसे तुमसे ही महरूम कर दिया। अफरोज ने नफरत से उसे देखा। ये सब तुम्हारी चाल थी, तुमने उसे धोखा दिया। अजरान ने कहकहा लगाया। धोखा नहीं, सौदा था। उसने अपनी मर्जी से अपना दुख बेचा था। अब वो सिर्फ एक बेरूह हाकिम है और तुम इसके इस महल की सबसे कीमती और सबसे दुखी कैदी। महल के दूसरे हिस्से में आर्यास अपने तख्त पर बैठा खला में घूर रहा था। उसे सब कुछ मिल चुका था, ताकत, सल्तनत और वो महबूबा जिसके लिए उसने कायनात को चैलेंज किया था, मगर उसके बावजूद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरा हुआ है जहां से कोई आवाज़ बाहर नहीं जाती। संगे अस्वद उसके सीने में अब एक बोझ बन चुका था, जो उसे ये तो बताता था कि वो जिंदा है, मगर ये नहीं बता पाता था कि क्यों। वो अपने हाथ को देखता जैसे उसने अफरोज की कलाई पर रखा था, मगर उसे वहाँ किसी तपिश का एहसास न होता। इश्क ममनू का ये 14वां बाब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहाँ विसाल ही सबसे बड़ा फराक बन चुका था। आर्यास अब अपनी ही फतह के मलबे तले दबा हुआ एक ऐसा जिंदा जनाजा था जिसके पास अब रोने के लिए आंखें थीं, न तड़पने के लिए दिल। हिसारे मलामत की फसीलों पर आज एक ऐसी खामोशी तारी थी जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम होती थी। महल के बुलंद तरीन बुर्ज पर आर्यास खड़ा था, जिसके हाथ अब भी सर्द थे, मगर आंखों में एक आखिरी फैसले की चमक थी। उसके पहलू में अफरोज खड़ी थी, जिसका हुस्न अब एक उदास चांद की तरह मुरझा चुका था। आर्यास ने महसूस कर लिया था कि ये लाफानी जिंदगी, ये बेरूह सल्तनत और ये जबरी विसाल दरअसल कायनात का सबसे बड़ा मजाक है। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो संगे अस्वद की स्याह शुआएं उसके पूरे वजूद को झुलसाने लगीं। उसे अब इदराक हो चुका था कि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को मिटाने का नाम है। अफरोज, आर्यास की आवाज़ में पहली बार वो पुरानी इंसानी लर्जिश वापस आई जो शायद उसके रूह के आखिरी बाकी मांदा जर्रे का मौजज़ा थी। हमने लाफानी होने की कोशिश में इस लम्हे को खो दिया जो हमें इंसान बनाता था। मैंने तुम्हें पाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसके बगैर तुम ना रही, और मैं ना रहा। अफरोज ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। आर्यास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, मगर इस बार ये गिरफ्त किसी शिकारी की नहीं, बल्कि उस आर्यास की थी जो वादी नीलम के झील के किनारे उस परिजात पर दिल हार बैठा था। आर्यास ने अपने सीने में पैवस्त इस संगे अस्वद को पूरी कुव्वत से जकड़ा। अगर हमारा विसाल इस मादी दुनिया में मुमकिन नहीं, तो हम अदम के उस पार मिलेंगे, जहाँ ना कोई जिन है ना कोई इंसान, जहाँ सिर्फ रूहें बोलती हैं। उसने एक जोरदार नारा मारा और अपनी तमाम जादुई ताकत, अपनी लाफानी जिंदगी और इस संगे अस्वद की तवानाई को एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया। पूरे हिसारे मलामत में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने आसमान के परखचे उड़ा दिए। महल की दीवारें रेत के घरूरमों की तरह बिखरने लगीं और वो काला संगे मरमर धुएं में बदल गया।
आर्यास और अफरोज के वजूद एक दूसरे में जम होकर आग के एक बुलंद शोले की सूरत इख्तियार कर गए। ये उनकी आखिरी कुर्बानी थी, अपनी हस्ती को मिटाकर एक दूसरे की रूह में अबदी तौर पर जज्ब हो जाने का अमल। जैसे ही वो शोला बुझा, हिसारे मलामत का वजूद ही खत्म हो गया। अब वहाँ ना कोई महल था, ना कोई तख्त और ना ही कोई लाफानी बादशाह। वादी नीलम की उस कदीम हवेली में जहाँ से ये दास्तान शुरू हुई थी, सुबह की पहली किरण पड़ी तो वहाँ बालकनी में सिर्फ 2 परिंदे बैठे चहचहा रहे थे, जिनके परों की रंगत ऐसी थी जो ना इस दुनिया की थी ना उस जहान की। इश्क की ममनू की ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। आर्यास ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत ताकत में नहीं बल्कि फना होने में पोशीदा है। वो दोनों अब किसी मादी कैद में नहीं थे, बल्कि हवाओं की सरसराहट और झील के सुकूत में एक हो चुके थे।